Hi guys, I am back with another lecture of Principles of Management. Before we start, just a brief introduction about myself. So I'm Sandhya Rao, working as an assistant professor at St. Andrews Institute of Technology and Management. And in this lecture, we're going to start with MBO and the goal setting process. So let's get started. So MBO stands for Management by Objectives. It's a technique by which we are trying to say that we will establish objectives for our employees for their performance so that we can check how they are performing, how effective they are, how efficient they are, and that is how we'll be able to achieve the organizational goals as well. So that's management by objective. It's clearly a personal management technique because here we are focusing on the employees, on our personnel. We are trying to control them, we are trying to monitor them, and if we are successful in monitoring and in controlling their performance, then definitely we'll be able to achieve the organizational goals as well, because the human personnel is the or human personnel are the ones who are actually responsible for the achievement of the organizational goals, because they are the ones who will be operating the machines, they will be executing the programs, the operations. So they are the ones who are actually behind it, behind the success or failure of any organization. So that is why they become a key part of any organization. That is why we are focusing on them here. So management by objective is a personal management technique. Okay? And it was most commonly being used in the 1960s. वहीं से इसका start हुआ था. And the person who was actually behind this technique was Peter Drucker. And yeah, so if I talk about the features of MBO, then it's a technique and philosophy of management. ये एक technique है management की, and यहाँ पे आप objective set करते हैं that okay, we are clearly defining that what exactly do we expect from our employees and how they need to do it. And once they know that what they need to do, then definitely they will work towards it, and any deviation from the set objectives will help the management to know that how they need to control the deviations and what corrective action plans they need to take in. Okay? And these objectives are not just set at the lower level management, they are being set at all the levels of management. The top level management के लिए भी applicable है, middle के लिए भी and lower के लिए भी. एंड यहाँ पे आप जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर रहे हो, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका जो एक प्रिमाइस है वो यही है कि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सको. Now what you do here is you try to convert the organizational objectives into a personal objective on the presumption that establishing personal objective makes an employee committed, which leads to better performance. Organization का goal है ठीक है that we want to achieve 50% profit, or let's say we want to increase our profit margin by 50%. ठीक है, अब ये organization का goal है. एक इंडिविजुअल इसके लिए सारा काम नहीं कर सकता. एवरी इंडिविजुअल विल डू देयर पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो by using MBO you are trying to establish the objectives of that particular one object, that particular individual. हर इंडिविजुअल का जो रोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो आप डिफाइन कर दोगे कि ठीक है, एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उसे दिन की 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, या लेट्स से 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, या 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, और उसमें से उसकी क्वालिटी चेक जो है वो कम से कम 90% होना चाहिए, 95% होना चाहिए, जो भी है क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया है आपने, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए. नाउ व्हेन ऑल द पीपल विल वर्क टुवर्ड्स देयर ओन ऑब्जेक्टिव, देन डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव द ऑब्जेक्टिव. उनका जो एक ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें 50% प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा अगर हर पर्सन अपना छोटा 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 पार्ट जो है वो कंप्लीट करेगा. लेट्स से हमारा ये टास्क है कि हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. अब एक सिंगल पर्सन विल नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, तो हमने क्या किया, हर पर्सन का, अगर हमारे 100 लोग इन्वॉल्व हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, देन वी विल क्लियरली डिफाइन कि हर इंडिविजुअल का, उन 100 के 100 लोगों का क्या क्या काम होगा. लेट्स से 2 पीपल विल, or let's say 10 people will be involved in the collection of bricks, लोग
ब्रिक्स लेकर आएंगे, देन और जो लोग होंगे वो और जो बाकी चीजें चाहिए होती है, सीमेंट या और भी कुछ भी अगर चीजें चाहिए तो वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। देन कुछ लोग होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। देन प्लम्बर विल बी देयर, फिटिंग वगैरह होंगे, देन पेंटर्स भी होंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी चीज के कंप्लीशन होने में। तो ऐसे ही हर इंडिविजुअल का अगर रोल जो है वो क्लियरली डिफाइन हो जाएगा तो वो अपने गोल की तरफ काम करेगा। क्योंकि प्लम्बर जो है वो सिर्फ प्लम्बिंग का ही काम कर सकता है ना। उसको अगर आप ये बोलो कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो अब वो तुम देखो कि तुम कैसे बनाओगे, वो नहीं कर सकता। उसको आप सिर्फ उसका काम बताओ कि उसको क्या करना है, वो अपना काम डेडिकेशन के साथ करेगा एंड आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा अगर यहाँ इस चीज में डेविएशन हुई है तो वो इस रीजन से हुई है, क्योंकि आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन कर दी है। ठीक है। Next is that in MBO we lay down the entire emphasis on objective. Obviously, as I've told you, इसका नाम ही है ये management by objectives. So we are clearly focusing on the objectives here. ठीक है। And we also the MBO जो है MBO की help से we can also provide appropriate systems and procedures by which we can achieve the organizational goals. ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू होता है देन परफॉर्मेंस का, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हो देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका टाइम टू टाइम रिव्यू करो, सो एज टू इंश्योर कि उसका टाइमली एग्जीक्यूशन हो जाए। बजाय इसके कि आप बाद में चेक करो कि वो चीज सही बनी है या नहीं बनी है, इससे बेटर है टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्ट करो, टाइम टू टाइम उसको चेक करो। ठीक है। Then MBO provides the means for integrating the organization with its environment, its subsystem and people. Definitely हर चीज को इंटीग्रेट करने में भी ये हेल्प करेगा। एंड एक प्रॉपर फीडबैक भी आपको मिलता है अपने एम्प्लॉय से उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब आप कंपेयर करते हो। ठीक है। Then advantages, if I talk about the advantages of MBO, then definitely it's a good motivation tool, because when you clearly define the roles and responsibilities of your employee, they will work towards it. उनको ये पता चल जाएगा कि अच्छा उनका काम ये है, उनसे ये एक्सपेक्टेड है, तो वो मोटिवेट होते हैं that okay we will work towards it and we will get good reward for it. ठीक है। And the employees also get empowered by this and their job satisfaction is increased, then also they are more committed towards their work, and there's a better communication and coordination because there won't be any ambiguity and confusion regarding the job profile. तो हर इंसान को जब ये पता होगा कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है तो वो उसी चीज से रिलेटेड काम करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड बेटर कम्युनिकेशन होगा क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा होगी। Then they also tend to have a higher commitment to objectives they set for themselves rather than those imposed by them on them by another person. Definitely. See, when the subordinates are given objectives by another person, then definitely they feel subjugated and they feel restricted, because it's human tendency that we don't want to be controlled, we want to be free and we want to work according to our will and according to our comfort level. Then definitely MBO allows you to do that. MBO gives you the freedom to do things on your own, in your own capacity. You can use your own creativity as well here. So when people are allowed to use their creativity, then definitely the commitment and the job satisfaction definitely increases. Also, here we are trying to link the individual goal to the organizational goals. Individual का goal अगर ये है that we want hike in our salary, we want peer recognition, तो उसको हम लिंक कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कि ठीक है तुम्हारा ये एक सिंगल या तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ये है, इसको पूरा करोगे देन आपका जो इंसेंटिव जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा, या जो आपकी नीड्स है उनको पूरी करी जाएगी। ठीक है। एंड डेफिनेटली ये एक यूनिफिकेशन होता है हर इंडिविजुअल गोल का, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो दीज आर द एडवांटेजेस दैट वी गेट फ्रॉम एमबीओ। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस देन यू कैन सी दिस डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे पहले सेट किया जाता है। देन यू डिफाइन द एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव कि हमें हर एम्प्लॉय से क्या क्या काम कराना है। देन यू डू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। अगर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गोल्स सेट कर दिए हैं और अब वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करना जरूरी है दैट ओके इफ इवन इफ दे आर डूइंग देयर वर्क
then what is the quality of the work, if they are doing good work or not. Then once it is done, you provide feedback that, if there was any deviation, then what were the reasons behind those deviations. If the performance was not up to the mark, the performance didn't match with the objectives which were being set in the uh, early stages of the process, then what were the reasons behind it. तो वो reasons को आप find out करते हो. And if you feel that the person has done a good work, good job, then you do the performance appraisal. उसको आप incentives देते हैं, reward देते हैं, and then this entire cycle gets repeated. आप कुछ नया process start करते हैं, दोबारा से ये cycle को start कर देते हैं. ठीक है? So yeah, I have already told you this, that how they do it. Now the next thing is goal setting. Now goal setting means setting up of an objective. ये एक आप जब आप goal set करते हो तो you are developing an action plan which tries to motivate and guide a person. ठीक है, इसी को गोल सेटिंग कहते हैं. एंड यहाँ पे आप बहुत सारे क्राइटेरियाज भी सेट कर सकते हैं, रूल्स वगैरह भी आपको, मतलब रूल्स वगैरह या गोल सेटिंग क्राइटेरिया से भी आप अपना चीजों को समझ सकते हैं. ऑल्सो गोल सेटिंग इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट लिटरेचर. ठीक है, कोई भी चीज में मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फोकस जो दिया जाता है वो ऑब्जेक्टिव्स पे दिया जाता है, गोल्स पर दिया जाता है. Even if you want to do personal development, then there also you need to set certain goals. See, everything is goal oriented. हमने बोला planning जो है वो goal oriented है, management is goal oriented. So what is this goal? Goal is the objective that we set. Goal की help से हमें अपना course of action पता चलता है, हमें motivation मिलती है, हमें एक direction मिलती है in which we have to move. ठीक है, जिसके बेसिस पे फिर हम आगे चल के और रूल्स और क्राइटेरिया जो है वो ले डाउन करते हैं. तो सेट द मोर स्पेसिफिक एंड ambitious goal leads to more performance improvement than easy और general goals. अब आपके गोल्स भी ना अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. अगर मैंने काफी एक वेग या काफी जनरल गोल अगर सेट कर दिया, then maybe I won't be able to identify the other criteria by which I will be able to achieve my goal. लेकिन अगर मैंने काफी स्पेसिफिक और काफी एम्बिशियस गोल अगर सेट किया है, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि मैं कॉन्क्रीट होकर, काफी क्लियर होकर मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे मूव किस डायरेक्शन में करना है, या मुझे अपना कोर्स ऑफ एक्शन कैसे डिटरमाइन करना है. अगर मैंने काफी वेग गोल सेट किया, फॉर एग्जाम्पल गोल मैंने सेट कर दिया है दैट ओके आई वांट टू गेट गुड मार्क्स. अब ये गुड मार्क्स क्या है? What is the definition of this good marks? That is not clear. That is ambiguous. So I won't be able to determine my course of action. क्योंकि course of action depend करेगा कि आप कितना exactly marks score करना चाहते हैं. अगर मेरा गोल एकदम क्लियर है, स्पेसिफिक है कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, तो मेरी जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगी, जो मेरा स्टडी प्लान होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा. 80% है अगर मेरा गोल, तो वो स्टडी प्लान उसके अकॉर्डिंग होगा. अगर मेरा गोल है कि मुझे टॉप करना है, देन वो उसके अकॉर्डिंग होगा. लेकिन अगर मैंने सिर्फ ये बोला कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, देन मे बी जो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो इतना ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं बन पाएगा, इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, एंड एम्बिग्विटी काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मैं अपना गोल भी शायद अचीव ना कर पाऊं. ओके, सो जब हम गोल सेट करते हैं तो वी नीड टू keep certain things in our mind. अब वो क्या क्या चीजें हैं, let's understand them, let's study about them. First is setting goals can affect outcome in 4 ways. जब आप कोई भी गोल सेट करते हैं तो वो जो आपका आउटकम है उसको भी अफेक्ट करता है. ठीक है, कैसे? चॉइस, एफर्ट, परसिस्टेंस एंड कॉग्निशन. सी, goal may be narrow. Goal may narrow someone's attention and direct their efforts towards goal-relevant activities and forward goal-irrelevant actions. Goals may make someone more effortful. For example, if someone usually produces 4 widgets per hour but wants to produce 6 widgets per hour, then they may work harder to produce more widgets than without the goal. Persistence. Goals may make someone more willing to work towards setbacks. Cognition. Goals may make someone to develop and change their behavior. Now what it means is कि आपने जिस तरीके का गोल चूज किया है वो आपके आउटकम को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा,
क्योंकि आप किस तरह की चीजों को, आप किस तरह के ऑल्टरनेटिव्स को चूज करोगे वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अगर आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने ऑल्टरनेटिव्स को चूज किया है, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चूज किया है एंड वो एकदम करेक्ट है, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव एंड आपका आउटकम जो है वो बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करेगा। लेकिन अगर आपने जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया है वो क्लियर नहीं है, वो एम्बिगुअस है या वो feasible नहीं है, then in that case your outcome will not match with your objective। ठीक है, effort, आपने गोल तो सेट कर दिया that you want to achieve 90% marks but your efforts are not कंसिस्टेंट विद इट। ठीक है, मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं और यू कैन से दैट दे आर नॉट इन लाइन विद योर गोल। तो उस केस में क्या होगा, आपका आउटकम मैच नहीं करेगा। आपने गोल तो सेट कर दिया 90% मार्क्स लेकर आने, बट आप पढ़ उसके लिए सिर्फ आधा घंटा ही रहे हो। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, मे बी शायद कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी जो रिटेंशन पावर होती है, जो उनकी ग्रास्पिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, तो उनको आधा घंटा पढ़ के ही काफी कुछ समझ में आ जाता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, बट let's say if a person is there who is an average student, then for an average student, half an hour or 1 hour study would not be sufficient. Okay, especially when there are 5 subjects, you have to devote equal time to every subject on daily basis. But if you are devoting only 1 hour every day and that too just to one subject, then in that case you won't be able to achieve your target. So your effort needs to be in line with your goal. Okay, and persistent होना बहुत जरूरी है। Let's say if you study for 6 hours today and then you don't study at all for the next 5 days, तो कोई कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो आप भूल जाओगे। यू विल हैव टू स्टार्ट ऑल दिस फ्रॉम स्क्रैच अगेन आफ्टर 5 days, क्योंकि 5 दिन पहले क्या पढ़ा था वो भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो फ्यूटाइल हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज, आपको बार बार दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा if you're not persistent। कॉग्निशन होना बहुत जरूरी है। गोल्स में कॉज समवन टू डेवलप एंड चेंज देयर बिहेवियर। कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो आपकी एक्टिवली वर्क करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है दैट यू नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी, देन आपके अंदर इतनी कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, नाउ there are 5 golden rules which will help you to set a good goal। सेट गोल्स दैट मोटिवेट्स यू। आपको हमेशा वो गोल सेट करने हैं विच कैन मोटिवेट यू। नेवर सेट गोल्स दैट कैन नेवर मोटिवेट यू। ठीक है, गोल्स दैट कैन मोटिवेट यू, दैट कैन गाइड यू, दैट कैन डायरेक्ट यू, दैट कैन एनकरेज यू आर गुड गोल्स। ओके, क्योंकि वो आपको हमेशा एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गोल सेट किया दैट आई वॉन्ट टू बी स्लिम। ठीक है, क्यों? बिकॉज मे बी आई एम क्वाइट फैट, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीबॉडी। ओके, सिर्फ ये एक इंडिविजुअल लुकआउट हो सकता है दैट ओके मैं काफी मोटी हूँ तो मुझे पतला होना है, बिकॉज मे बी मेरे को कुछ ऐसी ड्रेसेस पहननी है विच विल लुक गुड ऑन मी इफ आई एम मोर स्लिम। ठीक है, ओके, सो ये मेरा एक लुकआउट हो सकता है, पर्सनल लुकआउट हो सकता है। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीबॉडी ओवर हियर। So if I want to try some new dresses which will look good on me only when I'm more slim and when I'm more in shape, तो जब जब मैं जंक फूड खाऊंगी तो मेरा ये गोल जो है या मेरा जो ये टारगेट है ये मेरे माइंड में आएगा, ये मुझे ट्रिगर करेगा बार बार दैट नो यू डोंट हैव टू ईट दिस, ये काफी कैलोरी है इसमें, इस पर्टिकुलर आइटम में, तो इसको अवॉइड करना है बिकॉज यू हैव टू लूज वेट। तो मुझे ये चीज बार बार मोटिवेट कर रही है। ठीक है, कुछ ऐसे गोल्स मोटिवेट करो जो आपकी लाइफ में हाई प्रायोरिटी रखता हो। विदाउट दिस टाइप ऑफ फोकस यू कैन एंड अप विद फार टू मेनी गोल्स, और जो आपको ज्यादा और ऐसे अगर करोगे तो फिर आप ज्यादा टाइम किसी भी गोल्स को नहीं डिवोट कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ ही गोल्स रखो अपनी लाइफ में, बट वो स्पेसिफिक होने चाहिए, हाई प्रायोरिटी वाले होने चाहिए, रादर देन हैविंग टू मेनी गोल्स इन माइंड जहां पे आप फोकस भी नहीं कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपका ये गोल है दैट आपको फिट होना है, ठीक है,
तो बजाय इसके कि आपको स्लिम होना है, आई थिंक फिट होना एक बेटर गोल यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि जब आप फिट होने का सोचोगे तो आपके और जो काफी चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपका एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि फिट होना का मतलब है पूरी मेंटली एंड फिजिकली तरीके से फिट होना। आप ऑटोमेटिकली स्लिम भी हो जाओगे, ठीक है, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी, एंड आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो भी डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपकी हर चीज को चेंज ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे आप अलग से गोल नहीं सेट कर रहे हो कि आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे ये करना है, टाइम पे वो करना है। आपका सिर्फ एक ही गोल है, दैट यू वांट टू बी फिट। बाकी चीजें अपने आप चैनलाइज होती जाएंगी, अपने आप लाइन पर, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग इनटू लाइन, ठीक है, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग इनटू प्लेस। लेकिन यहाँ पे वो चीज जो है वो आपको बार बार मोटिवेट भी करेगी, क्योंकि वो हर चीज से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप काफी सारे गोल्स रखते हैं तो वो आपको डेविएट करते हैं, ठीक है। Next is set smart goals. This is again very important. You need to set smart goals, which means they should be specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. This is the definition of smart. S stands for specific, यानी कि ज्यादा वेग नहीं होना चाहिए, एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। देन measurable, you should be able to measure it, कि अगर आपने ये कहा है कि मुझे फिट होना है तो उसकी डिग्री क्या है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हो कि फिट होने का मतलब क्या है, ठीक है। कि आपका बॉडी मास इंडेक्स करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, आप शेप में आ जाओगे, बाकी चीजें अपने आप चैनलाइज होती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इट शुड बी मेजरेबल, यानी कि वो मेजर किए जाने वाला गोल होना चाहिए। अगर आपने ऐसा गोल सेट कर दिया जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, यानी कि आप यही नहीं चेक कर सकते कि मैंने ये गोल अचीव किया भी है या नहीं किया है, then it's of no use. Okay, so your goal should be measurable. अगर फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट का गोल ये हो सकता है कि मुझे अपना प्रीवियस टारगेट को बीट करना है, मुझे 1 मिनट में 100 मीटर रेस करनी है, ठीक है। मे बी ये आपका पहले गोल था लास्ट ईयर। इस साल में भी आपने अपना गोल चेंज कर दिया है, मुझे 30 सेकेंड्स में मुझे 100 किलोमीटर रन करना है, 100 मीटर रन करना है। तो ये क्या हो गया, ये जो भी आप गोल सेट कर रहे हो सारे मेजरेबल है, आप इनको मेजर कर सकते हो, ठीक है। कि आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो रनिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही है, आप उसको मेजर कर पा रहे हो कि पहले आप इतनी देर में इतना डिस्टेंस कवर करते थे, अब इतनी देर में इतना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। तो आप यहाँ पे मेजर कर पा रहे हो अपनी परफॉर्मेंस को, तो योर गोल शुड बी मेजरेबल, ठीक है। सेकेंड इज दैट इट शुड बी अटेनेबल। ऐसे गोल्स मत अचीव करो जिनको आप अचीव ही नहीं कर सकते, ऐसे गोल्स मत सेट करो। अनरियलिस्टिक गोल्स शुड नेवर बी सेट। अब आप ये कहो कि मैं यहीं पे जमीन पे बैठे बैठे तारों को टच कर लूं, ऐसा मेरा गोल है, देन दिस इज अनअटेनेबल गोल, क्योंकि ये अचीव नहीं कर सकते आप। ये अनरियलिस्टिक गोल है कि आप यहीं पे बैठे बैठे तारों को टच कर लो। अब ये मत कहना कि हाँ ठीक है हम पिक्चर क्लिक कर लेंगे एंड देन फोटो में टच कर लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इन रियल सेंस कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ बैठे बैठे सन को टच कर लो या स्टार्स को टच कर लो, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तो आपके जो गोल्स हैं वो आप रियलिस्टिकली सेट करो। अच्छा, एक थोड़ा और बेटर एग्जांपल ये होगा, अगर एक मीडियोकर स्टूडेंट या एक एवरेज स्टूडेंट अगर ये सोचे कि मैं सिर्फ आधा घंटा पढ़ के मैं क्लास को टॉप कर लूंगा, देन मे बी दैट्स स्लाइटली अनरियलिस्टिक गोल, क्योंकि उसको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती है, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं आता इतना। अगर वो एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो धीरे 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 ही करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को आप ये बोलो कि वो 10th क्लास का एल्जेब्रा सॉल्व कर दे, देन दैट्स नॉट पॉसिबल, वो एक अनअटेनेबल ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए, दे शुड बी अटेनेबल। देन इट शुड बी रेलिवेंट। ओके, रेलिवेंट एज इन कि वो एक आपकी लाइफ को एक मीनिंग दे सके, ऐसा आपका गोल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए आपकी लाइफ से, आपके करियर से। ओके, एंड इट शुड बी
the goal should be such which will help you to grow, which will help you to become good. ठीक है. And then next is it should be time bound. Everything should be time bound. अगर आप ये सोचो कि ठीक है आपका गोल तो ये है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन कितने टाइम में, अगर आपको 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, तो एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए कि मुझे ये चीज, या लेट्स से यू वांट योर गोल इज टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, तो वो 100 यूनिट्स की एक टाइम बाउंडेशन जरूर होनी चाहिए, दैट यू हैव टू प्रोड्यूस दिस 100 यूनिट्स इन 1 day, 2 day, 3 days, 5 days, or how many days. It should be time bound so that you can actually celebrate your success, because टाइम निकलने के बाद अगर आप उसको अचीव करो then it's of no use. ठीक है. Then next is set goals in writing. This is again a good key to set a nice goal, कि अपने goals को हमेशा writing में लिखो, लिख के रखो, otherwise तुम उन्हें भूल जाओगे. लिख के रखोगे तो वो तुम्हें बार बार माइंड में ट्रिगर करेगा उसको हर जगह. फॉर एग्जाम्पल जब आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो आप अपने डेट शीट को या टाइम टेबल को अपने स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने आप पेस्ट करके रखते हैं, अपने डोर पे, अपने रूम में, अपने बेड के पीछे, ऐसी जगह पे रखते हैं जो आपको बार बार दिखाई दे, आपको बार बार ट्रिगर करे, आपको बार बार मोटिवेट करे कि आपको उसके लिए काम करना है, उसके लिए हार्डवर्क करना है. ठीक है. सो इट शुड बी इन राइटिंग, ताकि वो आपको बार बार रीइंफोर्स करा सके इस फीलिंग को दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. मेक एन एक्शन प्लान. डेफिनेटली अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है उसके लिए एक एक्शन प्लान जरूर डिसाइड करो. एक्शन प्लान जब आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको और क्लैरिटी मिलती है कि आप ये गोल को अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. अगर कर पाओगे तो क्या क्या चीजें आप उसमें यूज करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, तो उससे आपको एक क्लैरिटी ज्यादा मिलती है कि ठीक है आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 90% मार्क्स लाने, तो अब आपने एक स्टडी प्लान बना लिया. ठीक है, मैं अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा या करूंगी. मुझे 2 hours मैथ्स को देने पड़ेंगे, 1 hour आई गिव टू साइंस, देन हाफ एन आवर आई गिव टू सोशल स्टडीज. तो ऐसे ऐसे करके आपने अपना एक स्टडी प्लान बना लिया है. ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलती है, एक डेविएशन नहीं होती है, आप एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो. Then next is that whenever you make a plan, you need to stick with it. जब भी आपने गोल बना लिया है तो stick with it. जो भी उसके एक्शन प्लान है उसको फॉलो करो, रिमाइंडर सेट करो so that you remain on track, and make regular time slots available to review your goals. टाइम टू टाइम उसको चेक करो कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, एंड योर एंड डेस्टिनेशन मे रिमेन क्वाइट सिमिलर ओवर द लॉन्ग टर्म. उसके बाद आपकी जो फाइनल जो आपका आउटकम आने वाला है ना, वो भी फिर उसी टाइप से आएगा. आप जब ऐसे इतना कंसिस्टेंट होके हर चीज को राइटिंग में रख के, अपना प्रॉपर एक्शन प्लान बना के एंड प्रॉपर रिमाइंडर सेट कर रहे हो, अपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी एंड लॉन्ग रन में भी उसके ही जैसा एक सिमिलर आपको आउटकम मिलेगा. ठीक है. So this is it. This is it about goal setting and MBO. And in the next lecture, we'll talk about decision making. Okay. So the homework or the 2 questions that I want to give you from this lecture is that you have to explain what MBO is, and you have to explain what are the good steps by which, or what are the key ingredients or the key components to good goal setting. So this is it. Thank you guys.